Welcome to the third video on the rhyme of the ancient mariner. The rhyme of the ancient mariner पर ये तीसरी वीडियो है. इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है. Previously we have seen video number 1 lines 1 to 20, video number 2 lines 21 to 40. हमने दो वीडियोस पहले देखी हैं. पहली वीडियो में लाइन 1 से 20 तक हैं, दूसरी वीडियो में लाइन 21 से 40 तक हैं. उन दोनों वीडियोस में एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखने के बाद हमें ये पता चला कि एंशिएंट मैरिनर एक वेडिंग गेस्ट को पकड़कर अपनी कहानी सुनाता है और वेडिंग गेस्ट परेशान होकर के छूटकर जाना चाहता है, नहीं जा पाता है और मजबूर होकर उसकी कहानी सुनता है और बीच बीच में छटपटाकर उठ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है. In the first two parts we have seen that there is a character, the ancient mariner, who has caught hold of one of the three wedding guests and began narrating his story. The wedding guest is highly disturbed. He has come here for a different reason, wants to go away, but is in the grip of the glittering eyes of the ancient mariner, and he is unable to get out of it. And he has no choice except to sit down and listen to the narration of the ancient mariner. He does try, he attempts, but of no use. Now here onwards, we will begin the third part, lines 41 to 62. अब हम तीसरी वीडियो में लाइन 41 से 62 तक देखेंगे. Let us see the text of the poem. हम पहले कविता के मूल पंक्तियां देखते हैं. And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. He struck with his overtaking wings and chased us south along. With sloping mast and dripping prow, as who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward we fled. And now there came both mist and snow, and it grew wondrous cold, and ice mast high came floating by, as green as emerald. And through the drifts, the snowy cliffs did send a dismal sheen, nor shapes of men, nor beasts we ken, the ice was all between. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and growled and roared and howled like noises in a swound. लाइन 41 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि एक शिप जिसकी चर्चा एंशिएंट मैरिनर कर रहा है, उस शिप के आगे बढ़ने का सीन हमने देखा था और उसमें शिप जैसे आगे बढ़ा, चर्च आई, माउंटेन्स, हिल्स, लाइट हाउस आए, वहाँ और चीयर अप करके हार्बर पर लोगों ने इनको रवाना किया था. उसके बाद ये आगे बढ़े, इन्हें सूर्य देखने को मिला जो कि लेफ्ट से राइज होकर के राइट में डूब जाता है. बहुत ब्राइट शिप है, बहुत ब्राइट सन है. और उसके बाद वो बताता है एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम. अब नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस उसको हुआ वो था स्टॉर्म ब्लास्ट का.
बहुत तेज अंधड़ का, तूफान का. And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. And the storm was tyrannous and strong, very wild, wickedly wild, and very strong. Actually, they are in a sea, and the whole area is widely open. So the force of water and air, or the tempestuous wind, is definitely going to be very strong. And here, since this is based on the imagination, the fancy of Coleridge, so he conjures up the image of a very strong and tempestuous blast. जहाँ पर हम शिप की लोकेशन देख रहे हैं, वो जगह बहुत खुले हुए समुद्र की जगह है. हवा को तेज तो होना ही है, नेचुरली भी देखें तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोलरिज अपनी कल्पना शक्ति को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है और एक सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ उसने जिस टेम्पेस्ट का, जिस तूफान का सीन क्रिएट किया है, वो बहुत टायरनस, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत विकेडली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक तरीके से स्ट्रॉन्ग है. एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम, and he was tyrannous and strong. He struck with his overtaking wings and chased us south along. और यहाँ पर वो बताता है कि जो स्टॉर्म ब्लास्ट आया वो इतना स्ट्रॉन्ग आया, उसने हमको चेज किया और हम साउथ की तरफ खिसकने लग गए, क्योंकि पानी का जहाज जो होता है वो जिस तरफ भी हवा का बहाव होता है वो उसी दिशा में जाने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि हवा के धक्के से वो चलता है. इस कारण से वो उनका शिप भी साउथवर्ड मूव करने लग जाता है. विथ स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्राउ, as who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe and forward bends his head. With sloping mast and dipping prow. Now the ship, because of the force of the stormy air, because of the force of the tempestuous air, it is shaking. It is actually very unstable. And he says, with sloping mast and dipping prow, the front part of the ship is dipping into the water, and the masts are sloping because the ship is very unstable. यहाँ हम देख रहे हैं पानी का जहाज बहुत बुरी तरह से पानी में डगमगा रहा है. क्यों डगमगा रहा है? क्योंकि स्टॉर्मी ब्लास्ट है और जिस भी तरफ हवा उसको धक्का देती है, प्रेशर क्रिएट करती है, उसे उसी डायरेक्शन में टिल्ट हो जाना पड़ रहा है और जहाज का सामने वाला हिस्सा, प्राव वाला हिस्सा पानी में बार बार डूबता जा रहा है. As who pursued with yell and blow still treads the shadow of his foe, and it looks as if the ship is chasing the shadow of his foe, the shadow of his enemy. अब क्योंकि ये पोएम एक सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर में लिखी गई है, बैकग्राउंड इसकी इस तरह से क्रिएट की गई है और इमेजिनेशन फैंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है, तो कोलरिज ये बताते हैं जहाज़ इस तरह से हिल रहा है जैसे कि वो अपने किसी दुश्मन को चेज करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको पानी के अंदर दबोचने के लिए बार बार पानी की तरफ अपने आप को झुका रहा है. एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, और अपने सिर को बार बार पानी की तरफ झुका रहा है, क्योंकि उस जहाज को ये लग रहा है कि उसका दुश्मन पानी के अंदर है और वो झपट्टा मार के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. द शिप ड्रोव फास्ट, लाउड रोर्ड द ब्लास्ट, एंड साउथवर्ड वी फ्लेड. द शिप ड्रोव फास्ट because of the push created by the stormy winds, the tempestuous winds. The ship is moving very fast. स्टॉर्म के हवा के प्रेशर के कारण जहाज
बहुत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है. Loud roared the blast, and the blast is roaring very loud. खुली जगह है, टेम्पेस्ट का माहौल है, स्टॉर्म का माहौल है और बहुत जोर से ब्लास्टिंग टेम्पेस्ट आया हुआ है, ब्लास्टिंग स्टॉर्म आया हुआ है, जैसे विस्फोटक स्थिति हो, इस तरह का टेम्पेस्ट आया हुआ है. एंड साउथवर्ड वी फ्लेड, और उसी के कारण साउथ की तरफ इनका जहाज धक्का खाकर जाने लगता है. एंड नाउ दे केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड. नाउ कोलरिज कंजर्स अप द इमेज ऑफ द मिस्ट एंड स्नो, creating a lot of cold in the atmosphere. अब कोलरिज अपनी कल्पनाओं में मिस्ट एंड स्नो, धुंध को क्रिएट करता है और बताता है कि अचानक से यहाँ बहुत तेज धुंध छा गई और बहुत तेज सर्दी पड़ने लग गई. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कुछ लाइंस पहले सूरज बहुत तेज चमक रहा था, अब हम देख रहे हैं कि सर्दी बहुत तेज पड़ रही है. कोलरिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में हम किसी भी तरह का साइंटिफिक लॉजिक नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है. एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरल्ड. ही सेज दैट on one hand it grew very cold, and on the other hand there came ice, and the ice was floating by, but the ice was so high, mast high. It was as high was the mast of the ship. जहाज का मस्तूल जितना ऊंचा था, इतनी ऊंचे ऊंचे बर्फ के टुकड़े बहते हुए पानी में आए. और ये टुकड़े कैसे थे? ये टुकड़े एज ग्रीन एज एमरल्ड. एमरल्ड एक प्रेशियस स्टोन होता है, पत्थर होता है, जिसे हम पन्ना बोलते हैं. पन्ना के जैसा हरे रंग का बर्फ का रंग था. बर्फ इतनी खूबसूरत बड़ी बड़ी हरे रंग की बर्फ जो कि जहाज की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंची थी, वो पानी में बहकर आ रही थी. एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स डिड सेंड अ डिस्मल शीन. ही सेज दैट व्हेन वी लुक्ड एट द होल सिनेरियो, we found that it was very dismal, it was very dingy, it was very gloomy, very unhappy, not giving a fresh or rejuvenating feeling at all. कोलरिज जो इमेज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो बताते हैं कि जब पानी में बर्फ बह करके आने लग गई तो वो ऐसे लगने लगी. एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्स डिड सेंड अ डिस्मल शीन. जो चमक निकल करके आ रही थी पूरे एटमॉस्फेयर में, बर्फ की सिल्लियाँ आ रही थी, वो चमक रही थी, लेकिन उसका जो इफेक्ट था वो बहुत डिस्मल था, बहुत ग्लूमी था, बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही अवसादपूर्ण था. Nor shapes of men nor beasts weaken, the ice was all between. Nor shapes of men, there were no men to look at, there were no human beings to look at. Nor beasts weaken. Okay, if there weren't human beings nearby, at least even beasts would do, animals would do, but there were no beasts at all. Nor shapes of men nor beasts weaken. We didn't have the knowledge of either men or beasts being nearby. हमारे आसपास ना तो कोई मनुष्य नाम की चीज थी देखने के लिए, ना ही पशु थे. The ice was all between. बस एक ही चीज थी जो दिखाई दे रही थी, और वो क्या थी? आइस. सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही थी. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and growled and roared and howled like noises in a swamp.
Coleridge says, the ice was here, the ice was there, the ice was all around. He has very beautifully, very musically created the image of ice all around. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. Very musical and very rhythmic lines written by Coleridge. कोलरिज ने यहाँ पर बहुत ही म्यूजिकल संगीतमय पंक्तियां गढ़ी हैं बर्फ का विवरण देने के लिए. द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड. सब तरफ, यत्र तत्र सर्वत्र बर्फ ही बर्फ थी. कैसी बर्फ थी? इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोर्ड एंड हाउल्ड लाइक नॉइजेज इन अ साउंड. एंड द आइस, बिकॉज वी हैव एन एटमॉस्फियर ऑफ द सुपरनैचुरल, so the ice was also supernatural. He says it cracked and growled and roared and howled. जो बर्फ थी वो अजीब सी, अद्भुत सी, कुछ विस्मय बोधक सी लग रही थी, जो क्रैक कर रही थी, ग्राउल कर रही थी, रोर कर रही थी, हाउल कर रही थी, अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रही थी, कभी चटकने के, कभी बिड़ने के, कभी विभत्स सी आवाजें निकाल रही थी. तो बर्फ से निकलने वाली आवाजें बहुत ही विचित्र थी. कैसी थी? लाइक नॉइजेज इन अ साउंड, एज इफ वी हैव द नॉइज विच वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आवर साउंड, ड्यूरिंग आवर स्लीप, or during when we are in a trance. So it was something of that sort that could be experienced at that time. So here we see that the picture of the ice has been conjured up very beautifully to create the supernatural effect. Now let us see a few words and meanings, phrases to understand line 41 to 62 प्रॉपरली. यहाँ हम कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस देखेंगे जो कि लाइन्स 41 से लेके 62 तक समझने के लिए हमें बहुत सहायक होंगी. टायरनस, डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक, तानाशाह, निरंकुश शासक. चेस्ड, रेस्ड, रश्ड, पीछा किया. स्लोपिंग, स्लैंटेड, ओब्लिक, तिरछा, एक दिशा में झुका हुआ. डिपिंग प्राउ, फ्रंट पार्ट ऑफ अ वेसल और एन एयरक्राफ्ट, पानी के जहाज का अग्रभाग. परस्यूड, फॉलोड, चेस्ड, ट्रेल्ड, पीछा किया. ट्रेड्स, फुटस्टेप्स, वॉक हेविली और रफली. roared, rumbled, thundered, resounded, गर्जा, भारी ध्वनि की. wondrous, unbelievable, amazing, astounding, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक, अचंभित कर देने वाला. emerald, a bright green प्रेशियस स्टोन, पन्ना, हरे रंग का एक बहुमूल्य रत्न. डिस्मल, मिजरेबल, डिप्रेसिंग, ग्लूमी, निराशाजनक, शोकमय, हतभाग्य, अवसाद के भाव उत्पन्न करने वाला. केन, नॉलेज, एक्वेंटेंस, अवेयरनेस, ज्ञान की सीमा, संज्ञा का दायरा, विद्या या दृष्टि. क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोर्ड एंड हाउल्ड. द आइस मेड ट्रिमेंडस साउंड विच हाईलाइटेड द ग्लूमी एटमॉस्फियर. बर्फ के जोर जोर से चटकने, बजने, खड़कने की मिश्रित ध्वनियां आ रही थीं. इससे वातावरण में अवसाद का भाव और अधिक प्रभावी हो रहा था. Here we have seen that Coleridge has very successfully and very effectively
created the atmosphere of supernatural, the atmosphere of fancy, which logically may be incorrect, but it is very interesting. It may be unscientific, but it is very interesting to the reader to go into that world of imagination. यहाँ हम ये देखते हैं कि कोलरिज ने जिस तरह का सुपर नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की इच्छा रखी थी उसे बहुत खूबी से निर्मित किया है। हम कोलरिज की इस कविता में वैज्ञानिक सत्य तो नहीं ढूंढेंगे, लेकिन जिस तरह से इसने एक इमेजिनेशन को यूज़ किया है, कल्पना शक्ति से जिस तरह की दुनिया का निर्माण किया है, जिस तरह की गतिविधियों का निर्माण किया है, वो बेहद खूबसूरत और बेहद सफलतापूर्वक उसने बनाई हैं। दिस इज द थर्ड वीडियो। वी शैल कंटिन्यू लाइन 63 ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर हमने लाइन 41 से 62 तक देखी थी। अब इसके बाद चौथे वीडियो में हम लाइन 63 के आगे देखेंगे। प्लीज सी द फोर्थ वीडियो। कृपया चौथा वीडियो भी देखें। धन्यवाद। थैंक यू।